Hello kids. Hi. Very good morning to all of you. How are you? सब ठीक है? I welcome you all at Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids where we will have top educators, quality content and great learning hacks that will help you kids crack your exams very easily. You can easily crack your exams with this channel of brand new channel of an academy. So join it fast kids. Okay? This is Shweta Parashar. As you all know, I have done BBA MBA in foreign trade and I have 5 years of teaching experience. I'm basically from Indore, Madhya Pradesh. You can find me at shweta.parashar28750 at an academy kid. जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है they can you can follow me on an academy at this particular ID. Join me fast kids. Okay, as you all know I am teaching mathematics to you all kids. पता ही है बच्चे नए हैं जो पहली बार मुझे YouTube पे देख रहे हैं. I am just giving this brief introduction to you guys. Okay kids, चलिए. Today we are going to start a small part of median. Okay, this is a part of chapter number 14 of statistics. जो हम लोगों ने कल किया है, कल we have completed mode. Okay, today we are getting median. That is a very important part of statistics. So be focused, be clear. Today we'll just see the introduction of median, what median is, what kind of questions they may ask, what you have studied in the previous classes about median that will cover today. Okay kids, चलिए सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं why I am forcing you to choose Unacademy because Unacademy is India's largest learning platform बच्चा लोग. It is the India's largest learning online platform where you will get plus subscription and you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लिया है, take the subscription as soon as possible. You will get so many things बेटा लोग जो आपको कहीं नहीं मिल रही वो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है एंड आई एम श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम एजुकेटेड आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 5 years और मैंने मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं. वॉट यू विल गेट हियर, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज हियर, यू विल गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हियर. आपको डेली लाइव क्लासेस कहाँ कहाँ पे दिखती है? नॉट ऑन यूट्यूब. टू पीपल आर सीइंग ओनली मी एट यूट्यूब बट आपको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं दिखने वाली है. कहाँ कहाँ पे दिखने वाली है? एट अन अकेडमी ऑल्सो. और अन अकेडमी पर भी मैं लाइव रहती हूँ लेकिन कहाँ पर? फ्री पर भी और प्लस पे भी. देर आर टू पोर्टल ऑन अन अकेडमी. देर इज फ्री एंड प्लस. आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री एंड यूट्यूब. आई एम जस्ट गिविंग यू, I am telling you to take the subscription on Plus where you can share and you can see the Plus courses also. We are having Plus courses on Unacademy. You can share that portion also. Okay kids, so you can enjoy daily live classes at Unacademy. You can enjoy live test and quizzes. As you all know we are taking quizzes. जैसे मैंने कल जो है Unacademy portal पे I have taken quiz of trigonometry. Trigonometry का मैंने quiz लिया है. That is important thing. ठीक है, उससे क्या हो रहा है? आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज हो रही है. व्हाट यू हैव स्टडीड वी हैव डन. कई बार ऐसा होता है यूट्यूब पे हमने कुछ पढ़ाया है, हम अनअकैडमी पे उसका क्विज ले लेते हैं या जो अनअकैडमी पे पढ़ाया है उसका यूट्यूब पे क्विज ले लेते हैं. दिस इज अबाउट द लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. वी आर हैविंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एज यू ऑल अबाउट नो अबाउट इट. ऑल द कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस. ठीक है, जिससे आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं जितने भी आपके एग्जाम के हिसाब से. जैसे आई एम टीचिंग स्टैटिस्टिक्स, आई एम जस्ट फॉलोइंग द लेवल ऑफ CBSE 10th. ठीक है, दैट इज अ थिंग दैट गिव्स स्ट्रक्चर कोर्स. सेकेंड चीज आती है आपकी अनलिमिटेड एक्सेस, जो कि आपको पता ही है. अनलिमिटेड एक्सेस मतलब क्या? जहां पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो. रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ पर देख सकते हो? अनलिमिटेड एक्सेस पे देख सकते हो. ये एक्सेस आपको अनलिमिटेड है, मतलब आप जब चाहे जो चाहे. जैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो यू कैन सर्च श्वेता पराशर ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस हैं वो सब दिख जाएंगे. इफ यू वांट टू लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स तो अभी चल ही रहा है तो आपको पता ही है. ओके किड्स, लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है एंड यू कैन प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर्स थ्रू अनअकैडमी. ओके किड्स, नाउ वी आर हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. बच्चा लोग, आप लोग जब प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे ही आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, यू आर हैविंग 5 subjects, you will get courses at 5. You can see mathematics के we are having 6 courses at plus. We are having 6 courses at social science at plus, 3 courses of Hindi at plus. साइंस के 3 कोर्स हैं प्लस पे, इंग्लिश के 1 कोर्स. ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप यूट्यूब वाले बच्चों में आपको बोल दूं, बहुत से बच्चे मुझसे अकेडमी पे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर रखी है. लेकिन जिन लोगों ने अभी तक लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, यू नीड टू इंस्टॉल द लर्निंग ऐप. फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए.
When you will take subscription on Plus, you will get so many things beta. You are having structure courses in English, Hindi, both. You will have top educators. You can publish, we are having new courses which are published every month. So 30 plus hours of live sessions you will get at Plus. So take subscription on Plus and you will get so many things. बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब वो रेफरल कोड पूछेगा, you need to type this referral code Shweta1. When you will type this referral code, you will get 10% discount and then you can proceed for the further. Now टेलीग्राम ऐप की बात करें, डाउनलोड करिए टेलीग्राम ऐप, URL में लिंक टाइप करिए, दिस इज द लिंक दैट यू नीड टू टाइप इन URL एंड यू कैन ज्वाइन दिस. तो टेलीग्राम पर फटाफट से डाउनलोड करिए, लिंक URL पे टाइप करिए एंड यू कैन ज्वाइन दिस. Okay kids, now this is about the plan we have beta. We have 1 year, 2 year, 3 year and 4 year plan. You can see here these plans are very beneficial for you. और सबसे पहली चीज ये देखो कि जो पैसा है ना वो कितना कम है. ये जो अमाउंट है ना, 4 ईयर का फीस देख रहे हो 36,000. इट इज द लेस अमाउंट. इससे कम में कहीं नहीं मिल सकता. 36,000 तो यूजुअली हम देखते हैं किसी इंस्टीट्यूट की ईयर फीस होती है, या आपको 4 ईयर फीस मिल रही है, और जो ईयर फीस है ना वो आपको 1 मंथ फीस होती है. You can see the difference. It is the very cheapest price ever I have seen in my 5 year of career. So you should choose Unacademy. फटाफट से प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लो. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए you need to use my code Shweta1. जैसे ही यूज करोगे you can proceed for the payment and get discount over there. Okay, so don't miss this opportunity and take the advantage. चलिए, we are on the topic of ours. क्या है? Median part 1, chapter number 14, statistics. If you have studied पुराने प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो हम लोगों ने मीन कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, मीन के बाद वी हैव कंप्लीटेड मोड आल्सो एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीडियन पार्ट 1. आई विल जस्ट गिव ए इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियन टू यू. जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी अबाउट द पार्ट 1, और कल जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. आज हम लोग मीडियन का एक पार्ट 1 देख रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स बताऊंगी कैसे आप इसको. ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का. डोंट मिस इट. इफ यू हैव लर्न मीन, मोड, शुड नो अबाउट मीडियन. एंड आपको पता है ये तीनों जो है दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड अनग्रुप डेटा फर्स्ट. सबसे पहले तो आप समझिए अनग्रुप डेटा क्या होता है. ये मैं मीडियन के लैंग्वेज में बात कर रही हूँ. मीडियन में अनग्रुप डेटा क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा क्या होता है? व्हाट इज अनग्रुप डेटा? वेयर यू विल हैविंग इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जब भी अनग्रुप डेटा होता है ना, अनग्रुप डेटा में आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है कि देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस. यू विल हैव ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, कई बार फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है प्लस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. सॉरी, आई फॉरगेट टू राइट दिस. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस यू हैव, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है. ठीक है, आपको क्या करना होता है, ये अनग्रुप डेटा है. अनग्रुप डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियन. व्हाट यू नीड टू डू इन मीडियन. सो आई एम जस्ट गिविंग यू हाउ टू अंडरस्टैंड अनग्रुप डेटा फर्स्ट. सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा को समझें कि मीडियन में अनग्रुप डेटा को कैसे अरेंज करेंगे. तो अनग्रुप डेटा को आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. आफ्टर मेकिंग असेंडिंग ऑर्डर, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला लगा. कैसे लगाते हो ये भी बता दूं. यू आर हैविंग एन. आपको पता है ये एन होता है. एन मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये जो आपका एन होता है उसको आप यूज करते हैं यदि आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है. इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, आप क्या यूज करते हैं? n प्लस 1 बाय टूथ टर्म, या आप बोल सकते हैं टर्म लिख लो या ऑब्जर्वेशन लिख लो. वो आपका मीडियन होता है. मतलब जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो n प्लस 1 बाय टूथ वाला जो टर्म होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगा, वो आपका मीडियन. गेटिंग माई पॉइंट. ये सब आप कब पढ़ चुके हैं? अर्लियर क्लासेस में. आपकी पहले वाली जो क्लासेस है, मतलब 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट.
कि जब अनग्रुप डेटा होता है, पहले आपको ग्रुपिंग तो रहे है ही नहीं, ग्रुप तो अब कोर्स में है, ग्रुपिंग तो आपको आपको 10th क्लास में कोर्स, इससे पहले आपको अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा में यू आर हैविंग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस विद फ्रीक्वेंसी, जिसमें आप लोग टेलीमार्क से फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते थे। यहाँ पर आपको इतना करना है, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, उस अनग्रुप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप जैसे ही लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होता है यू नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर ऑड होता है व्हाट यू नीड टू डू बेटा, यू नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोल रही हूँ मैं, ये वाला। ओके, सो डोंट मिस इट, यू नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज ऑड, एन जो है वो ऑड है। अब यदि n, look at the screen, if n is even, okay, then आपको मीडियन बताना है। मीडियन कैन बी कैलकुलेट बाय एवरेज ऑफ, कैसे होगा, कैन बी कैलकुलेट बाय एवरेज ऑफ n by 2 and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। आप इसको टर्म भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट टर्म ऑल्सो, टर्म और ऑब्जर्वेशन वॉट एवर सुटेबल टू यू। ठीक है, तो कैसे होगा, n बाय टूथ वाला टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1 वाला टर्म। लेट करते हैं n यदि 10 है, ठीक है, देन 10 बाय टूथ एंड 10 बाय 2 प्लस 1 वाला टर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज 5th एंड 5 प्लस 1, ठीक है, 5th एंड 6th टर्म आ जाएगा। आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा, एवरेज, नीड टू फाइंड 5 प्लस 6 बाय 2, कितना आ रहा है, 11 बाय, व्हेन यू विल डू डिविजन विल गेट 5 बाय, व्हाट यू विल गेट, 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना, विल गेट 1, 5.5 आ जाएगा, है ना। तो 5.5 वाला जो टर्म होगा वो वाला टर्म आपका मीडियन है। क्लियर है, 5.5 पे जो टर्म होगा, टर्म मतलब ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, उसके आसपास जो होगा वो आपका मीडियन, दैट इज एक्चुअली द टर्म। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ आगे, देखो एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, यू कैन अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल्स देखिए, ये है आपका अनग्रुप डेटा, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ अनग्रुप, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। लिसन, इज व्हाट अनग्रुप्ड डेटा दिख रहा है। यहाँ पर आपको अनग्रुप डेटा में वो तो दिख नहीं रहा है आपको, अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा में आपको कुछ भी वो अपना ये क्लास इंटरवल तो दिख नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा वी हैव, हाउ वी कैन फाइंड आउट द मीडियन, एज वी आर हैविंग मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट टेस्ट, आपको n कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ, ठीक है। अब आपको n 100 दिया है, दैट इज इवन, इवन दिया हुआ है, तो आपको पता है आपको क्या निकालना है, n बाय टूथ एंड n बाय 2 प्लस 1 वाला ऑब्जर्वेशन, और उन दोनों का एवरेज निकाल। पहले तो अपन ये करें, पहले एक टेबल बनेगा, ठीक है, आपके पास मार्क्स हैं, आपके आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दिस इज अबाउट योर मार्क्स, दिस इज अबाउट योर नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू, जब भी हम ऐसा करेंगे वी विल मेक इट, हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मैंने आपको पिछले पहले भी बताया था, जब अनग्रुप डेटा होगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग। एंड सेकेंडली हम क्या करते हैं, एंड मैंने क्या बोला था,
आपको एन कैलकुलेट करना है। आपकी एन कैसे आएगी? यू आर हैविंग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी? अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे करेंगे? वी आर हैविंग अ टेबल, यू कैन सी हियर आई हैव अ टेबल। यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी। ऑब्जर्वेशंस को क्या लिखा हुआ है इन्होंने? मार्क्स ऑफ। तो आप यहाँ चाहें तो मार्क्स ऑब्टेन लिख दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन। इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना चाहे तो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं एफ पी, यहाँ आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ। क्लियर है? ये इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। पहले आपको अरेंज करना है। ये टेबल मैंने क्यों बनवाया है? वी नीड टू अरेंज द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। दिख रहा है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। So we are just arranging the data in ascending order. What will be the ascending order? From, it will be the increasing order, है ना, from lesser to the highest. Okay, पहला है 20, 25, 28. I am using the data. बार बार स्लाइड पीछे करना पड़ेगी, that's why I have already written it in copy. 29, 30, 38. If I am wrong, you can tell me. 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 and 43. ये यहाँ पर होगा, एक बार पीछे से चेक कर सकते हैं। 20, 40, ठीक है, 43 करेक्ट है। नाउ वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी, इसी की जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है हम लोग वो लिखेंगे। 6, 20, 24, 28, 50, 4, 2 and 1. Now we need to calculate cumulative frequency. As you all know that हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन हाउ वी कैन कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी आर हैविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 6। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं ये? 20 से 25 के बीच में भी तो कुछ आ रहा होगा, है ना? तो वी आर जस्ट राइटिंग डाउन। यहाँ पर हमारे मार्क्स ऑब्टेन 20 तक हुए हैं, यहाँ सिर्फ 25 तक हुए हैं। बीच वाला कैसे पता चलेगा? दैट विल 6 + 20 विल गेट 26। समझ आ रहा है? देन 26 + 24 अप टू 28 आना चाहिए ना। ये जो हमारा मार्क्स ऑब्टेन है, इसके बीच का जो डेटा है, उस डेटा को फिल कौन करेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26 + 24 यू विल गेट, मैं पहले वाले टेबल में ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देन यू आर हैविंग 50 + 28, व्हाट यू विल गेट kids? 50 + 28, that is 70, 78. Getting my point? Then you are having 78 हो गया। ठीक है, 78 + 15, what you will write here? 93, and then 93 + 4 will get 97. 97 + 2 will get 99, and 99 + 1 that is 100. अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, दिस इज द लास्ट नंबर दैट इज एन। ये दिया हुआ है इन्होंने, आपने अगर चेक किया हो क्वेश्चन में एन गिवन है। मैंने सबसे पहले यही चीज देखी थी, दैट इज एन, और हमने पहले यही देखा था व्हाट इज इवन और ऑड। ठीक है, अब यहाँ पर एन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी करेक्ट आ रही है कि नहीं वो आपको बताएगा आपका एन। ये एन जो है वो आपका 100 आ रहा है, दैट इज टोटली करेक्ट। अब एन कितना आ रहा है? इवन है, हमको पता है n/2 लेना है। n/2th टर्म क्या होगी पहले निकाल लो, और फिर n/2 + 1th टर्म जो वो भी निकाल के रख लो। तो पीछे फॉर्मूले में हमको पुट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। n/2th टर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द n/2th टर्म? 100/2 दैट इज 50, 50 + 1 दैट इज 51। अब क्या बोला है? एवरेज ऑफ दिस, ये एवरेज that is 50 + 51 by, am I correct?
अब पहली बात सुनो, 50th और 51th टर्म चाहिए, सॉरी दैट इज माई मिस्टेक, टर्म चाहिए, मेरे को ऐसा लगा नंबर आ गया, ये आपका टर्म आया ना, 50th और 51th टर्म है। अब डेटा देखिए, 50th क्या आ रहा है, 50th क्या है, सी द डेटा, 50th ऑब्जर्वेशन, यू आर हैविंग द डेटा जहां पर 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, 50 पर ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, टेल मी, और 51th ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, ये देखिए, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू नीड टू फोकस योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। अब देखिए ये 50th है, ये 50th ऑब्जर्वेशन दिख रही है, 50th ऑब्जर्वेशन पे मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, ये दिख रहा है, दैट इज 28। मैं चेंज कर रही हूँ कलर ताकि आपको क्लियर हो जाए, दिस इज 28, 50th ऑब्जर्वेशन पर 28 आ रहा है, और एक 51th ऑब्जर्वेशन, तो 50 के बाद तो यही आ रही है, 51 नेक्स्ट होगा, 51th ऑब्जर्वेशन पर आएगी, दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, तो दिस इज 51th एंड दिस इज 50th और दिस इज 51th ऑब्जर्वेशन, तो आपका कितना आंसर आ रहा है, 50th ऑब्जर्वेशन 51th ऑब्जर्वेशन आपकी 29 आ गई, और ये 28 आ गया, आपको पीछे क्या करना है, 50th प्लस 51th वाला टर्म है ना, कितना हो रहा है, 28 प्लस 20 उसको डिवाइड बाय 2, 28 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इसी का निकलेगा, 28 प्लस 29 कितना होता है किड्स, यस 57/2, व्हाट यू विल गेट, 57/2 का आंसर कितना आएगा, 28.5, ये क्या आ रहा है आपका, तो मीडियन जो है आपके डेटा का वो ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालकर आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज अबाउट द अनग्रुप डेटा, यू आर हैविंग, वैसे कि अनग्रुप डेटा आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अनग्रुप डेटा अब एग्जाम में नहीं आता है, अब जो आपके 10th सिलेबस में है वो है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि पिछली क्लासेस का हम लोग भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, और कई बार दे भी देते हैं कि प्रीवियस आपको याद है कि नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ओवर राइटिंग अच्छा, यहाँ पर आपका ये 2 है, 50th प्लस 51th वाला टर्म, ये कितना हो गया, 28 प्लस 29/2, दैट इज 58, तो ये आपका मीडियन आ गया डेटा का। अब मैं आपको फिर से एक बार टेबल दिखा रही हूँ, सी क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला था, मार्क्स आउट ऑफ 50 में से कितने लोगों को कितने मार्क्स आए हैं, 100 स्टूडेंट, एन हमारा ऑलरेडी गिवन था, दैट वाज द अनग्रुप डेटा, दैट मे यूजुअली कम्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और इनसे हम लोग जो एमसीक्यूज आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में, फिलअप्स में आ गया या चूज द करेक्ट में आ गया, ऐसा कुछ करके ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अनग्रुप डेटा आपको पता होना चाहिए, कि ग्रुपिंग सीखने से पहले आपको अनग्रुप तो पता होना चाहिए कि कैसे करना है, यू शुड नो कि कौन से टर्म को कैसे प्लस करना है, क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे फॉर्मूले में आपकी टर्म है, उस टर्म को आपको ये वैल्यू निकालना है, मैं आपने अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो, जब भी हम मोड निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को देखकर आंसर हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी की, एनालाइज हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर रहे हो कि 50th टर्म है या 51th टर्म है, लेकिन आप लिख क्या रहे हो, आंसर कितना आ रहा है आपका, मार्क्स ऑब्टेन, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, आपकी जो ऑब्जर्वेशन दी होती है दैट इज द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, टर्म हमारी हम लोग फ्रीक्वेंसी से एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन टर्म हम क्या लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं, ये 50th टर्म ये है, 29 जो है वो 51th टर्म है, दिस इज 50th टर्म एंड दिस इज 51th टर्म, हम वो टर्म निकाल रहे हैं, क्लियर हो गया, लेकिन हम लिख वही रहे, मीन भी हम किस में से लिखते हैं, एवरेज भी कहाँ का आता है,
ऑब्जर्वेशन का आता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी बार आ रहा है, हमको तो मतलब मार्क्स ऑब्टेन से है। ये मीडियन जो आपसे पूछा है, मीडियन किसका पूछा है? मीडियन मार्क्स ऑब्टेन का ही पूछा है, तो हमको मार्क्स ऑब्टेन चाहिए। आगे समझ में, दैट इज अबाउट द मीडियन थ्रू अनग्रुप डेटा। नाउ वी आर हैविंग हाउ टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का कैसे निकालोगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो देखो, जैसे कि बाकी सब में मोड में आपने पढ़ा, मीन में आपने पढ़ा, जैसे फॉर्मूला होता है, वैसे ही मीडियन जो है ग्रुप डेटा का निकालने के लिए फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट मीडियन थ्रू ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग? नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रुप डेटा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फिर से लिख देती हूँ, पीछे तो लिखा हुआ था लेकिन आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन अगेन। ग्रुप्ड डेटा, वी नीड टू नो अबाउट ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है? इसमें क्लासेस होती हैं, क्लास इंटरवल होती है। मैं फिर से बता देती हूँ, हर हर वीडियो में आप लोग देखोगे, जो चीज़ मैंने पहले पढ़ाई होती है मैं वापस रिवाइंड कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, कई बार आप लोग ऐसा सोचते हैं, यार वो क्या होता है, कुछ बच्चे नए होते हैं, वो सोचते हैं अरे ये क्या होता है, तो पिछली रिवाइंड या पिछली वीडियो देखने से अच्छा इट्स बेटर कि आपको यहीं पे। ठीक है, नाउ सी, जहां पर मैं बोलना चाहती हूँ मैं वहां बोल ही देती हूँ कि आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू बच्चा लोग? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, पहले आपको पता होना चाहिए मीडियन क्लास। मैं ये सारी चीजें बता दूं। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से आपका निकलेगा एल, एल के बाद आपको पता होना चाहिए एन बाय, फिर आपको पता होना चाहिए सी एफ, फिर आपको पता होना चाहिए एफ, ये जो फॉर्मूले के टर्म्स हैं वो मैं बता रही हूँ, और फिर आपको पता होना चाहिए एच क्या। अब वी आर हैविंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलता है? एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। जब आप एन बाय टूथ वाला ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? मीडियन क्लास मिलेगा। मतलब ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन क्लास, एन बाय टूथ वाला क्लास का ऑब्जर्वेशन। आप फ्रीक्वेंसी देखोगे जो इस वाली कैटेगरी में आ रही है, दैट विल कम्स द क्लास। क्लास क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ, समझना फॉर्मूले को ठीक से, लोअर लिमिट ऑफ एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ, फटाफट बताओ, मीडियन क्लास। ये जो आपकी मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट है एन बाय टू। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टू, ऊपर ही दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टू। एंड सी एफ मतलब क्या होता है? हाँ, इट इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। पहले वाली क्लास का, मीडियन क्लास से पहले वाला सी एफ जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ओनली, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। जो आपने मीडियन क्लास निकाला है उस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है एफ। एंड व्हाट इज एच बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एच? एच इज द क्लास साइज, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, कहाँ पर पढ़ चुके हैं? मोड में। दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर, क्लास इंटरवल आपको पता ही है। दैट इज अबाउट द फॉर्मूला वी हैव। क्लियर हो गया? तो क्या बोलते हैं क्लियर हो गया? That is the formula you need to learn about it. Now we are having a question, you can see here, consider a grouped frequency distribution of marks obtained out of 100 by 53 student। total students दिए हुए हैं, आप दिख रहा है स्क्रीन पर? can you please see on the screen? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज मैं समझाना चाह रही हूँ आप, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे कैलकुलेट होगा।
सिंपल सी मेथड बता रही हूँ। ये ग्रुपिंग दी हुई है, ग्रुपिंग अगर दी हुई है तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई रोल ही नहीं है। साफ ही दिख रहा है कि 0 से लेस, जितना 10 से जितना लेस है वो में आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, 10 से जितना लेसर है वो इसमें आ रहा है, 10 से 20 तक के जितना आ रहा है वो ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 के बीच में 4 आ रहा है, 30 से 40, मतलब ये डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ आपको जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज cumulative frequency, prepare a table with cumulative frequency। आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, वो भी हम इसलिए निकालते हैं बिटवीन जो अमाउंट है, बिटवीन जैसे 0 से लेस आ रहा है 5, अब 20 से भी तो लेस आ रहा है ना टोटल, तो ये टोटल क्या होगा, यहाँ पर लेस देन 20 है, समझ में आ रहा है, वो निकालने के लिए जैसे ये लेस है तो लेस देन 10 इतना आ रहा है, पर लेस देन 20 कितना आ रहा है, लेस देन 20 भी तो पता होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 5 + 3। गेटिंग माई पॉइंट, हम उसके लिए निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक टेबल बनाना है, यू टेबल, यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल रहता है, यहाँ पर आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहता है और यहाँ पर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपको निकालना होता है। जैसे ही आया ग्रुप डेटा का, यूनिट कैलकुलेट, ग्रुप डेटा हो अनग्रुप डेटा हो, यूनिट टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू नो लेस देन में कितना आएगा, मोर देन में कितना। ठीक है, वी आर हैविंग क्लासेस दैट इज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज जो है वो लिख लेते हैं अपन। 5, आई हैव नोटेड इन माई कॉपी, दैट्स वाई 5, 4, 4, 7, 9, 7। Okay, now you need to calculate frequency. How you can calculate it? You are having, देखो फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बता दिया आपको, लेस देन 10 कितना आ रहा है, 5, लेस देन 10 कितना आ रहा है, 5। ओके, अब लेस देन 20 कितना आएगा, ये लेस देन 20 है, तो देखते जाना है ना, ये लेस देन 20, तो दैट विल बी 5 + 3, दैट इज 8। समझ में आ रहा है, देन 8 + 4, 12, 12 + 3, 15, 15 + 3, 18, 18 + 4, 22, 22 + 7, that is 29, 29 + 9 gives you 38, 38 + 7 will gives you 45, 45 + 8 will gives you 50, and 53 क्या दिया था उन्होंने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 53 टोटल स्टूडेंट्स है, 100 मार्क्स में से ये 50 टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 दिख ही रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, टेबल देखो, मार्क्स तो 100 दिख रहे हैं, टोटल जो है आपका एन जो है वो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले क्या निकालूंगी मैं, मीडियन क्लास, पहले मैं यहाँ पर ही निकाल लेती हूँ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इक्वल्स टू n by 2th observation that is equals to 53 by 2th, कितना आएगा, जल्दी से 53 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है बताओ, what will be 53 divided by 2, that is 26.5, करेक्ट। अब 26.5 ढूंढो। अब मेरे को एक और बात बता दो, 26.5 मतलब इट शुड बी ग्रेटर, ये जो टर्म है ना, CF जो होता है, CF शुड बी ग्रेटर देन दिस, ओके, शुड बी ग्रेटर, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आप,
एफ इससे ग्रेटर होना चाहिए। 26.5 दिख रहा है, तो 26.5 जो है उससे बड़ा तो यहाँ पर सी एफ से 29 है, दिख रहा है? कैन यू सी एट सी दिस ऑन द स्क्रीन? दैट इज 29। 29 वाला टर्म जो है उसका क्लास आएगा आपका, मीडियन क्लास कितना हो गया? 60 से, ठीक है? यहां पर हम लिख रहे हैं therefore median class equals to 70। अब क्या करना है? L निकालो, फिर n/2 निकालो, F निकालो, फिर F निकालो और फिर H निकालो। व्हाट विल बी L? L मतलब लोअर लिमिट कितना दिख रहा है? 60। n/2 तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है पीछे, 53/2 निकाला था ना, दैट इज 26/5। एम आई करेक्ट? सी एफ मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग क्लास क्या है? इधर देखिए, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। ये क्लास है, इस क्लास के ऊपर वाला सी एफ, दैट इज सी एफ हो गया, और ये तो एफ है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी से पहले वाला, ओके? ये एफ क्या होगा? 1 सेकेंड, ये ये आपका एफ है, ये सी एफ करंट है, ये प्रीसीडिंग है और ये करंट है। आपको प्रीसीडिंग वाला सी एफ चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज। लेजर यूज करके इसको रब कर देती हूँ। आपको ये सी एफ चाहिए, ठीक है? सेकेंडली, आपका एफ जो होगा वो ये होगा जो करंट फ्रीक्वेंसी है, ये सी एफ हो गया और ये एफ हो गया। समझ में आ रहा है ना मैं जो समझाना चाह रही हूँ? तो व्हाट यू आर हैविंग, सी एफ इज इक्वल्स टू, कितना आया था, क्या था पीछे लिखा हुआ? एफ वॉज 22, एफ वॉज 7, और डिफरेंस कितना है क्लास साइज? 70 माइनस 60 इज 10, 10 का डिफरेंस आ रहा है। पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, पुट वैल्यूज, क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एच। l कितना है? 60, प्लस n/2 26.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। कैलकुलेशन करिए, विल गेट द आंसर। 26.5 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 26.5 माइनस 22, व्हाट विल बी द आंसर? फटाफट, 4 पॉइंट, यस, and that will be multiplied by 10, you will get 45/7। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 60 प्लस दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 10, आपने मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, स्टेप स्टेप डायरेक्ट कर दिया। यू विल गेट 60 प्लस 45/7 कितना होता है? 6.4, यू विल गेट 66.4 हियर। दिस इज योर मीडियन। समझ आ रहा है? दिस इज योर मीडियन, दिस इज अ वे यू कैन कैलकुलेट। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? देयरफॉर मीडियन ऑफ द डेटा लिख सकते हो ना, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इक्वल्स टू 66.4 मार्क्स। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं बता दूं आप, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, जो भी यूनिट रहेगी वो लिखना, तो जाके आपका ये आंसर करेक्ट है। क्लियर है? विदाउट यूनिट यू कैन नॉट से कि आंसर सही है, ठीक है? नीड टू राइट द यूनिट्स। क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, दैट इज क्लियर टू यू। पहले अनग्रुप डेटा समझा, फिर ग्रुप डेटा समझा, हाउ टू कैलकुलेट ग्रुप डेटा। क्लियर है? चलिए, नाउ रेफर योर एनसीईआरटी, we are having some examples, you can refer your NCERT. Okay, we are having examples, that is example number 7. See, can you see? This is example number 7.
अब एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है? अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th of a school was conducted and the following data was obtained. Refer your NCERT. You will get this example. Example number 7 in your book. हाइट गिवन है, नंबर गिवन है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, परेशान तो होना ही नहीं है। क्या गिवन है? लेस देन टाइप गिवन। लेस देन 140 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेस देन 145 कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है। ये जो आपको गिवन है वो क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बनाएंगे प्रिपेयर द टेबल। द फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द टेबल। व्हाट विल डू? विल अरेंज द टेबल। कैसे बनाएंगे? वी आर हैविंग द डेटा। फर्स्ट आएगा आपका क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। देन वी आर हैविंग क्लास इंटरवल्स के बाद आई विल हैव सी एफ तो दिया हुआ है, एफ लिखूंगी और फिर सी, ताकि मैं माइनस कर। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है भाई? ये क्या दिया है इन्होंने? लेस देन 140। तो मेरे को कितने लोग दिए हैं? 51 दिया हुआ है ना? तो 51, देखो 51 गर्ल्स टोटल दिया हुआ है। ये तो दिया नहीं है कि हाइट कितने सेंटीमीटर से शुरू हो रही है। हाइट तो नहीं दी है, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 51, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लास्ट तक 51 दी हुई है, मतलब n इज इक्वल दिया हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि आखिरी मिनिमम जो आपकी क्लास क्या है, हाइट है, वो नहीं दी हुई है। तो आप क्या करोगे? यहाँ लिख दो बिलो 140, 40 से नीचा, ठीक है। फिर आपके पास आ गया 140 से लेकर 145, 145 से लेकर 150। इधर देखिए, दिख रहा है? ये दिख रहा है 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160। यही मैं लिख रही हूँ। 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। क्लियर है? 6 ऑब्जर्वेशन। अब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं गिवन वाला फिर से लिख रही हूँ। 4, 11, 29, 40, 46 और 50। आपका एन दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, ये क्यूमुलेटिव गिवन है। आपने क्लास इंटरवल बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना सकते हो। बिलो 140 तो इतना ही है, 4। अब 11 माइनस 4, तो 140 से 145 आ जाएगा। 11 माइनस 4, यू विल गेट 7। 29 माइनस 11, यू विल गेट 18। 40 माइनस 29, हम इसमें माइनस करते हैं। 40 माइनस 29, यू विल गेट 11। क्लियर है? 46 माइनस 40, विल गेट 6 एंड 51। 51 माइनस 46 विल गेट 5। क्लियर हो गया? ये फ्रीक्वेंसी। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा है तो हमारे पास है फॉर्मूला। फॉर्मूला है तो फॉर्मूले की सारी चीजें मेरे पास टेबल पे होनी चाहिए। मुझे उसमें एफ भी चाहिए, मुझे उसमें एफ भी चाहिए, और मुझे उसमें मीडियन क्लास भी चाहिए। ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? मीडियन क्लास। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं? मीडियन क्लास। कैसे निकालोगे मीडियन क्लास? कैसे निकलेगी? n इज इक्वल्स टू 51, n बाय 2 इज इक्वल्स टू 51 बाय 2 टर्म आ जाएगी। 51 बाय 2 कितना होता है? जल्दी से बताओ। 25.5। करेक्ट। 25.5 वाला टर्म देखिए, मतलब इससे ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज 29। यही दिख रहा है मुझे तो। सर्कल कर दूं इसको दूसरे कलर से कि नहीं करूं? कर दूं ना? ये देखिए, दैट इज 29। अब ये 29 क्या है? का क्लास ये है, तो द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 145 से लेकर 150। क्लियर है?
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो मीडियन क्लास इक्वल्स टू 145 से लेकर 150। एल कितना आएगा, है ना, n/2 कितना आएगा, एफ कितना आएगा, सी एफ कितना आएगा और एच कितना, ये आपको पता होना। तो एल कितना आ रहा है भाई, 145 लोअर लिमिट। n/2 मतलब से क्या था, n/2 25 ठीक है। एफ कितना आएगा, पीछे वाला टेबल देखो, एफ फ्रीक्वेंसी 18 दिख रहा है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। सी एफ कितना आएगा, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, 7। और एच कितना आएगा, डिफरेंस 5 का डिफरेंस दिख रहा है, 5। पुट द वैल्यूज, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन एफ। फॉर्मूला नहीं भूल, एल कितना है 145 प्लस n/2 कितना है 25.5 माइनस सी एफ विल बी 11 divided by f is 5, sorry, f is 18 multiply by 5। clear है, what will be the answer, 145 plus 25 minus 11, 5 gets 2.5 divided by 8। clear है, आगे समझ में। and when we will divide it, 145 plus 72.5 divided by 18 करोगे, you will get 4.0 4.03। then you can get 145 plus 4.03 get 149 point। समझ में आ रहा है, that will be your answer। समझ आया बेटा, नहीं आया, ठीक है। तो मीडियन क्या आ रहा है आपका, therefore मार्क्स लिखना पड़ेंगे ना, हाइट लिखना पड़ेगी ना, मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स, ऐसे आपको डेटा लिखना है, इक्वल्स टू 149 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, यूनिट के बिना कुछ नहीं हो सकता। समझ आया, क्लियर है, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आर यू गेटिंग दैट, यू कैन रेफर योर एनसीईआरटी, यू विल गेट द आंसर्स। okay, now see there is another example which is very important question, बहुत ज़्यादा important question, usually एग्जाम में आता ही है और बच्चे गलत करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट मिस इट। क्या क्या गिवन है पहले देख लो, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 520, मतलब मीडियन गिवन, मीडियन इज इक्वल 520। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई 100, मतलब n जो है वो 100 दी। टू फाइंड, व्हाट यू नीड टू फाइंड बच्चा लोग, वैल्यू ऑफ एक्स एंड, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ऐसे हो गए तो आपको कभी प्रॉब्लम ऑफ एक्स वाई। देखो सबसे पहले मैं आपको पहले इसी को डेट टेबल बता दूं आपको, क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि लेस देन मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास क्लास है, फोकस ऑन द क्वेश्चन तो मैं समझा रही हूँ, डोंट 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 गेट कंफ्यूज। वी आर हैविंग क्लास इंटरवल, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें सी एफ निकालना है। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, लेट मी कॉपी फ्रॉम, 0 से 100 दिया है, 100 से 200 दिया है, 200 से 300, 100 से 400, 400 से 500,
500, 100, 100 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 1000। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है बॉस? 5 x 12 17 20 बाय 9 7 और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसमें आपको वैल्यू किसकी निकालनी है। पेन चेंज कर दूं? वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? एक्स की। और पेन इतना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। क्या रहा, दिख रहा है? डिफरेंट पेन से मैंने लिख दिया ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। नाउ कैसे निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कैसे निकालेंगे? फर्स्ट विल बी 2, 2 + 5 विल गिव यू 7, 7 प्लस एक्स आ जाएगा। देन 7 + 12 कितना होता है? 19 प्लस एक्स आ जाएगा। 19 + 17 कितना होता है? 7 से 14 36 पॉइंट एक्स आ जाएगा। 36 + 20 कितना होता है? 56 प्लस एक्स आ जाएगा। देन यू विल हैव 56 + x + y आ जाएगा। 56 + 9 कितना होता है? 5 4 5 प्लस x + y आ जाएगा। 5 + 7 कितना होता है? 72 प्लस x + y एंड 72 + 4 76 प्लस x y। अब आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या गिवन है? 100 n। n कितना आना चाहिए था? 100। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, देखो द क्वेश्चन एज n is equals to 100, so 76 plus x plus y is equal x plus y is equals to 100 minus 76 कितना होगा? 24। इसको मैं ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। आई एम जस्ट इट इक्वेशन नंबर। ठीक है, नाउ मीडियन क्लास equals to what? L is equals to what? F is equals to what? N by 2 is equals to what? F is equals to what? And H is equals to what? We need to calculate. टेबल देखो पीछे, फिर से टेबल कर रही हूँ। मीडियन क्लास, मीडियन क्या गिवन है क्वेश्चन में? 525। क्या गिवन है? 520। अब इधर देखिए 525 कहाँ पर किस क्लास के बीच में आ रहा है? यही क्लास है 500 से 600 के बीच में, यहीं पे आएगा ना मीडियन। तो मीडियन क्लास तो साफ दिख रही है 500 से 600 के बीच। तो एल कितना आ रहा है? 500। एफ क्या आएगा? पीछे देखो, सी एफ 36 प्लस क्लियर है। n by 2 is 100 by 2, that will gives you 50। f कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी बताओ। 20 दिख रहा है ना? टेबल में बार बार पीछे इसीलिए कर रही हूँ। एंड h कितना है? दोनों में डिफरेंस 100 का। अब वैल्यू हम पुट करेंगे। हाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज? वी आर हैविंग m is equals to l plus n by 2 minus c अपॉन में into h। l कितना है? 500। मीडियन कितना है यहाँ पे? पहले मीडियन लिखेंगे 525। आप देखिए m कितना गिवन है? 525 इक्वल्स टू, यहाँ मैंने लिखा नहीं m आपको मीडियन आपको गिवन है दैट इज 520।
लिख लिखा है मैंने 500 एल की वैल्यू n/2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस सी एफ कितना आ रहा है 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एफ कितना आ रहा है 20 इंटू एच कितना है 100 फिर 525 माइनस 500 कितना हो जाएगा यहीं पे लिख दिया 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी ये आ गया 25 इक्वल्स टू 50 माइनस 36 कितना होता है 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 10 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 एक और आ गया आगे क्या कैलकुलेशन आएगी मैं अब कैलकुलेशन बता रही हूँ आपको नाउ सी द कैलकुलेशन 25 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इंटू 5 25 divided by 5 will gives you 14 minus 14 minus x is equals to 5 x is equals to 14 minus 5 x is equals to what 14 में से 5 जाता है कितना बचता है 9 put value of x in equation number 1 equation number 1 क्या दी थी x plus y is equals to 24 9 plus y is equals to y is equals to 24 minus 9 कितना होगा जल्दी 50 okay so value of x is equals to 9 y is equals to 15 that is answer तो आंसर है यही क्वेश्चन था आ गया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये एग्जाम में पूछा ही जाता है ये एग्जाम में आएगा ही आएगा ये आप दिमाग में डाल के बैठे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है दैट्स व्हाई आई हैव डन इट तो डोंट फॉरगेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से स्टेप्स देख लो ये नहीं तो इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है इट ओके किड्स is there any doubt is there any query you can ask me to have any query you can find me at shweta.parasha28 750 at unacademy unacademy पे मिल सकते हो आप लोग मेरी unacademy की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो पे तो आप लोग हैं इंस्टॉल कर लीजिए unacademy ऐप एंड you can see my free classes as well as the class classes at unacademy okay kids thank you very much for listening me thanks a lot मैं बार बार बोल रही हूँ टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल से आप लोगों को प्लस कोर्सेज के बेनिफिट मिल सकते हैं एंड यू कैन यूज श्वेता वन दे ओके सो डोंट फॉरगेट टू use my code and don't forget to take the subscription because there are so many very interesting courses at plus के courses को miss ना करें और श्वेता वन यूज कर you can code and you can subscribe okay kids thank you very much for listening me thanks guys okay bye have a nice day